કોંગ્રેસનો એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર એપ્રોચ, એક પ્રકારની કૃષિ પોલિસી, એની માહિતી આપીએ છે. હું એને અહીં લગભગ રિપીટ કરું છું. છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં ખોટા આંકડા, ખોટી માહિતી આપીને એગ્રીકલ્ચરમાં પણ આપણે નંબર 1 છે આવી ખોટી જાહેરાતો, એના બદલે હકીકતમાં લગભગ 3 થી 4 લાખ જેટલા ખેડૂતો ઘટ્યા છે અને 20 લાખ જેટલા ખેત મજૂરો વધ્યા છે. એટલે જે 70+ એગ્રીકલ્ચર બેઝ ગુજરાતનો હતો એ લગભગ 67+ જેવું. આટલો ફરક, જમીન ઓછી થઈ. જમીન ઓછી થાય એટલે ઉત્પાદન ઓછું થાય, બહુ સ્વાભાવિક છે. એટલું જ નહીં, જે કંઈ ભારત સરકારની આ નીતિ અને યુપીએ સરકારની નીતિમાં MSP મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસની જે પદ્ધતિ હતી, એમાં યુપીએ સરકાર સાચા અર્થમાં ખેડૂતો સુખી થાય એના માટે MSP સમયે વધારતા એટલું નહીં, જરૂર પડે તો એ સરકારે ઇન્ટરવ્યુ કરીને ખેડૂતનું પાકેલું ખરીદવું, માર્કેટિંગ ઇન્ટરવેન્શન, જેથી કરીને ફક્ત વેપારીઓના ભરોસે ખેડૂત ન રહે, બાજા ભાવે સરકાર પણ ખરીદે. જેમ દાખલા તરીકે કપાસ, લગભગ એ વખતે યુપીએ સરકારને 3,000 કરોડ કરતાં વધારે નુકસાન થયું છે, પરંતુ કપાસ પકવતા ખેડૂતો એ વખતથી સુખી થયા હતા. આ બધા જ રૂપિયા ખેડૂતના ઘરમાં સીધા ગયા હતા અને CCIએ બહુ મોટા પાયે એની ખરીદી કરેલી હતી. ભાજપ સરકાર આજે પણ MSP પૂરેપૂરું આપતી નથી અને MSP આપે તો બજારમાં જે ખેડૂતને ફક્ત વેપારીઓના ભરોસે છોડી દેવાનો હોય, એના બદલે સરકાર ખરીદી કરે MSPના ભાવના આધારે, તો ખેડૂતને ભાવ મળે, જે ભાજપની સરકાર ઘણા વર્ષોથી કરતી નથી. પરિણામે ખેડૂત પાયમાલ થતો જાય. એટલું જ નહીં, બાકીમાં વીજળીમાં આપણે નંબર 1 છે, ઉત્પાદનમાં વગેરેમાં. આજે પણ ગુજરાતમાં 4 લાખ જેટલા ખેડૂતો એ વીજ કનેક્શનના વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે. આજે પણ એને પોતાના ખેતરમાં મોટર મૂકવી હોય, ઇલેક્ટ્રિક મોટર, એ વર્ષો દર વર્ષે ભાજપની સરકાર કીધા કરે કે અમે આટલા લાખ ઓછા કરીશું, પણ આ તો આંકડો વધતો જાય છે. એનું મૂળ કારણ એને જે સબસિડી આપવી પડે અને સરકારને જે ભારણ વધે ન થાય એના માટે જઈને ભલે ખેડૂત રાહ જુએ, એને કનેક્શન આપવાના નહીં. ઉદ્યોગપતિઓને આઉટ ઓફ વે જઈને, જે નેનો હોય, બીજા હોય, ત્રીજા હોય, બધાને જોઈએ એટલી વીજળી મફત, એકદમ સસ્તા ભાવે. અને આવી રીતે સરકારની બેધારી નીતિમાં ખેડૂત આજે પણ એના જે વેઇટિંગ લિસ્ટ, એને પાવરની રાહ જુએ છે કનેક્શનમાં, એમાં આજે પણ રાહ જુએ છે. એટલું જ નહીં, તમે જો કનેક્શન ના આપો ઇલેક્ટ્રિક કમિશન, તો ઇરિગેશન માટે જે નર્મદા 2010માં એ લોકો પૂરી કરવાના હતા, 2016 થયું, 6 વર્ષ પછી પણ નર્મદાના ઠેકાણા નથી. અને કારણ વગરની પાઇપલાઇનોનું કરપ્શન થાય, ભ્રષ્ટાચાર માટે નર્મદાનું જે હાર્દ હતું, કેનલના મારફતે પાણી પહોંચાડવું, એના બદલે પાઇપલાઇન નાખીને કરપ્શન કરીને આજે પણ હજી 2020માં તો નર્મદાનું સિંચાઈનું પાણી પહોંચે તો ખેડૂતનું નસીબ. બાકી ભારતીય જનતા પાર્ટી આમાં માહિર છે કે આ પ્રમાણે આપણે કર્યા કરવું. ખેડૂતોને હોર્સ પાવરના બદલે કેટલાક એવા મીટર શરૂ કર્યા છે. અમારી નીતિ એવી રહેશે કે અમે તમામ મીટરો ખેડૂતોના કાઢી નાખીને હોર્સ પાવર પણ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ ભાવમાં ઘટાડો, આજના ભાવ છે એના બદલે સરખો ભાવ મળે એવી રીતનું આયોજન કરીને, મીટરના બદલે મીટર હોય તો ચોરી કરવાનું મન થાય અને એટલા માટે મીટર કાઢી નાખીશું, હોર્સ પાવર રાખીશું. હોર્સ પાવરના પણ વૈજ્ઞાનિક ભાવ રાખીશું, જેથી એને
એ જે બિલ ભરવાનું હોય એ અને પાકે બજારમાં વેચવા જાય ત્યારે કમસે કમ એને પડતરના બદલે 1-2% પ્રોફિટ મળે ખેડૂતને. એટલું બધું બિલ ન આવે વીજળીનું કે જેથી વેચવા જાય તો બિલ એને ભરવાનું મોંઘું પડે. એવી પદ્ધતિથી આખો એનો વિચાર કરીશું અને સરકારે જે ખોટા કેસ ચોરીના ખેડૂતના કર્યા હોય એ અમે બધા કાઢી નાખીશું. એની સાથે સાથે જે વીજ એક્ટની 135 એ ઔદ્યોગિક એકમોને લાગુ પડતી હોય એ ખેડૂતો ઉપર લગાવી છે એ પણ કલમ અમે કાઢી નાખીશું. એના સિવાય લગભગ એક બાપ હોય 5 વીઘાનો માલિક અને 2 છોકરા 2.5 વીઘા દીકરા હોય ભાગમાં આવે. હવે બોર કે કનેક્શન એકમાં હોય 2.5 વીઘા વાળાના ભાગમાં જો આ કનેક્શન ન ગયું હોય તો એ શું કરે? તો નીતિ વિષયક કરીશું. એને પણ જો એને બોર કરવો હશે અને જો એને હોર્સ પાવર જે જોઈતા હોય તો 2.5 વીઘામાં નવું કનેક્શન પણ સરકાર આપશે. આજની સરકારની નીતિ જે ખોટી છે કે અમુક એકર હોય ને અમુક રીતે હોય બીજામાં આપવું જ નહીં એ નીતિ બદલી કાઢીશું અને ખેડૂત માગે ત્યાં આપણે એને વીજ કનેક્શન આપીશું. એ સિવાય જે કંઈ બાકીના બધામાં એ હલર થ્રેશર વગેરે એ માટે ક્યાં એક વીજ કનેક્શન લેવા જાય તો એ પણ વીજ કનેક્શન આમાંથી એનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એ કરી શકશે અને લગભગ 14 કલાક જેટલી વીજળી ખેડૂતને અમે આપીશું અને શક્ય હોય તો દિવસે આપવાની કોશિશ થાય. અંધારામાં રાત્રે એની જરૂર નહીં. ફેક્ટરીમાં ઉદ્યોગમાં રાત્રે આપો તો ચાલે. બાકીની જે અત્યારે હાલ જે પદ્ધતિ છે એમાં ખેડૂતોને જે રોજડા અને ભૂંડ ને એ બધું તમને કલ્પના બહારનું નુકસાન છે. અત્યારે હાલ તમે સૌરાષ્ટ્રમાં બીજા વિસ્તારોમાં ઇવન હવે ગુજરાતની બોર્ડર પર પણ ગાડી લઈને જતા હોય તો રોજ પૂરે આપણા ઉપર ગાંધીનગરમાં ધ્યાન રાખજો બાકી ત્યાં બી જમ્પ મારે છે એટલે ભાજપવાળા નહીં હું પહેલા કહું છું. એટલે એને રોકવા માટે 80% સરકાર સબસિડી આપે અને ફેન્સિંગ કરવાની હોય તારની વાડ કરવાની હોય વગેરે એનો એને અમલ કરે ઉપયોગ કરે. એમાં ગવર્મેન્ટ 80% સબસિડી આપીને આના ત્રાસથી ખેતીને બચાવવાની અને ખેડૂતને બચાવવાની કોશિશ થાય. હમણાં સરકારે સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કરીને જમીન માપવાની પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી છે. એટલે આલાની જમીન માલામાં અને માલાની જમીન આલામાં હોય એના કરતાં 15 વીઘા હોય તો 10 જ વીઘા સેટેલાઇટમાં આવે, અહીં હોય તો ત્યાં આવે. એના બદલે અત્યારે જે પદ્ધતિ ચાલતી હતી એ જ પદ્ધતિ રાખે, સેટેલાઇટ રહેવા દે. આ પ્રમાણે આવા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો દુરુપયોગ થતો હોય તો એવી પદ્ધતિનો અમલ નહીં કરવો જોઈએ. એ સિવાય જે પહેલા તલાટી લેવલે 7/12ના ઉતારાને એ બધું મળતું હતું, અત્યારે હાલ એમને કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ આપેલી છે. કોન્ટ્રાક્ટરો કમાઓ. જે તલાટીની જવાબદારી હતી એના બદલે સેન્ટ્રલાઇઝ કરીને પ્રાઇવેટ કોન્ટ્રાક્ટ આપીને જે 7/12ના ઉતારા 8/12ના ઉતારા ખેડૂતનો રાઈટ છે આ એને સસ્તામાં સસ્તી રીતે મળવું જોઈએ. બલકે મેં ખેડૂત પોથી અમલમાં મૂકેલી જેમાં એની પાસે આ બધું ઓટોમેટિક હોય. એના બદલે આ નવી પદ્ધતિમાં ખેડૂતને માર પડે છે અને કમાય છે થર્ડ પાર્ટી જે એમના વાળા બધા કોન્ટ્રાક્ટરો હોય એ પ્રમાણે જે કંઈ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં સિંચાઈનું પાણી અને પીવાનું પાણી આજે પણ ચોમાસું પૂરું થવા આવ્યું. સૌરાષ્ટ્ર જો સરકાર આયોજન નહીં કરો તો તરસ્યું રહેશે. પાણી કાપ શરૂ થઈ ગયો પીવાના પાણીમાં આજે પણ. તો તમે સૌની યોજના વગર યોજના બીજી યોજનાને આ બધા જે તાયફા કરીને પ્રજાના પૈસાની બરબાદી કરો એના કરતાં પાણીનું આયોજન કે પીવાનું પાણી રિયલી મળે ઘરે ઘર જે સિસ્ટમ હોય એ પ્રમાણે એવો વિચાર કરવો જોઈએ. કોંગ્રેસ એનું પ્રાયોરિટી આપીને એને પ્રાથમિકતા આપશે આ બધામાં. અને એના સિવાય બાકીના જે બધા પાક વીમાનું પણ ખેડૂતને એ લોકોએ પ્રીમિયમ ના આપવું પડે એવી ટાઈપનું કરીને લગભગ પાક વીમો પણ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ એ નથી. પછી ઘણા બધા પાક ઊંઝામાં જીરું, વરિયાળી, એરંડા એટલે દિવેલા, વલસાડમાં વલસાડી હાફૂસ, જુનાગઢની કેસર, જ્યાં એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન સારી રીતે થાય છે એવામાં એને વેલ્યુ એડિશન કરવા માટે પ્રોસેસ કરીને પણ જે કરી શકાતું હોય એના પણ પાક ડેવલપ કરીને
એમાં પણ એનો વિચાર કરાય. આ એગ્રીકલ્ચરની વાતો અમારી છે. એના અનુસંધાનમાં આપણે કંઈ પૂછવું કરવું તો આપ જરૂર પૂછો. તાજેતરમાં સરકારે એક પરિપત્ર બહાર પાડીને એવું કીધું છે કે જે ખેડૂત પાસે એક કનેક્શન હશે એને બીજું કનેક્શન જોઈશે તો એને તાત્કાલિક ધોરણે કનેક્શન આપવામાં આવશે. એને એમાં કેટલા એકર હોય એના ઉપર છે. મેં કીધું એમ 5 વીઘામાં બેનું આપવું હોય તો નહીં આપે. એને એમાં એકરેજ જોડેલું છે. હવે એકરેજ જેટલી જમીન જ ન હોય, એક વીઘો ઓછી હોય તો નહીં મળે. આવું નહીં આવવું જોઈએ. ખેડૂત માટે સરકારે લિબરલ રહેવું જોઈએ. આ વાત પૂરી થાય છે એગ્રીકલ્ચરની. આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે વિસાવદરમાં અમારું ખેડૂત સંમેલન છે. એમાં મેં કીધી એ વાતોની અમે ત્યાં જાહેરાત કરવાના છે. એક દિવસ એડવાન્સમાં આપણે આ તમારા બધાનું ઓપરેશન કર્યું એટલે વહેલા કહી જશે તમને 24 કલાક પહેલા. હવે देखिए, एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इवन एक्सटर्नल अफेयर्स, देश को सुरक्षा के बारे में, सिक्योरिटीज, इंटरनल सिक्योरिटीज, इसके बारे में सही जानकारी समय समय पर देनी चाहिए. और जो जानकारी अब तक की मिली है इसमें मैं देश की आर्मी को बधाई देता हूं कि आपने पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उधर जाकर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है और आर्मी के कहने से जो 7 कैंप थे वो उसका नाश किया और 38 टेररिस्ट थे वो शायद मर गए. आतंकवाद कहीं पर भी हो, टेररिज्म कहीं पर भी हो, वी हैव टू कंडेम इट. और ऐसे टेररिस्ट कैंप्स जहां चलते हो वहां अगर भारतीय आर्मी ने जो किया है तो मैं वेलकम करता हूं और बधाई भी देता हूं. अब जो दिल्ली की सरकार है, डोमेस्टिक प्रेशर इतना आया था, हमारे 20 जवान जो है वो मारे गए, ढलाए गए. पठानकोट एयरपोर्ट के ऊपर जो हुआ उसके बाद जो ये हुआ, इसलिए देश की जनता बहुत दुखी थी और बीजेपी गवर्नमेंट से एक्शन की अपेक्षा करती थी, भाषण की नहीं. बड़े बड़े भाषण की नहीं, एक्शन. अब ये डोमेस्टिक प्रेशर जो था स्पेशली पीएम के ऊपर कि जिनके भाषण से ये लोग टाइट हो गए कि नहीं अब तो जरूर एक्शन होगा क्योंकि हमारे 20 लोग मारे गए. अब जो प्रश्न होता है क्या पठानकोट में जो टेररिस्ट घुसे उसके बाद या जल्दी एज पॉसिबल जल्दी से जम्मू में जो उरी में टेररिस्ट आए और अब शायद 1 हफ्ता ही हुआ उरी का, विद इन अ वीक हमारी आर्मी ने मे बी एयरफोर्स के साथ हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन, बाय लैंड जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी देता हूं. लेकिन इसके पहले आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या कि कहां कहां टेररिस्ट अड्डा चल रहा है, ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं? अगर वो इंफॉर्मेशन थी तो पठानकोट एयरपोर्ट पर क्यों आए? अगर वो इंफॉर्मेशन थी तो आपके जम्मू में 20 जवानों का शहीदी क्यों देनी पड़ी आपको? और ओवरनाइट कहां से इंफॉर्मेशन ले आए आप कि पीएफओ में चल रहा है? ये जो अगर इंफॉर्मेशन थी तो क्यों नहीं रोका? और ओवरनाइट इंफॉर्मेशन ले आए, वेलकम, ओके, आप ले आए, अच्छी बात है. लेकिन जिसने उरी, पूंछ, वो एरिया रजौरी जो देखा है फिजिकली, मैं तकरीबन 1.5 महीना वहां पहले रहा हुआ हूं, देखा हूं फिजिकली, मैंने एरिया देखा है. जो बाय लैंड जाना है, श्रीनगर तो देखा होगा आप लोगों ने, इवन जम्मू भी देखा होगा. जम्मू भी पक्की डकी, ये भी ऊपर नीचे है.
प्लेन लेवल नहीं है। श्रीनगर तो तकरीबन कहीं पर भी आपको कुछ खेत पहलगाम में मिलेंगे सेफ्रॉन के, इसके अलावा लेवल लैंड बहुत कम है। और ये जो एरिया है पर्टिकुलर जहां आर्मी ने रात को सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये लेवल लैंड नहीं है। अगर लेवल लैंड नहीं है तो इसका मतलब बाय लैंड आपकी आर्मी रैकिंग करते करते, क्राउडिंग करते करते 20 किलो का LMG लाइट मशीन गन लेकर वहां पहुंचना अंधेरे में रात को 3 बजे 4 बजे, जो भी कोई मेरे को समझाए कि इज इट पॉसिबल। और क्राउडिंग करना है तो लेवल में आधा एक फरलॉन्ग भी इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ जुआन, ऐसे ऐसे करके जाना शस्त्रों के साथ, या वेरी डिफिकल्ट। आवाज नहीं आएगी, वो तो बज ही नहीं सकता, अंधेरे में तो आवाज बहुत ज्यादा आएगी। एक ये इसका मतलब बाय लैंड जो भी आपने विद हेलीकॉप्टर प्रोटेक्शन विद ड्रोन वीडियोग्राफी जो भी किया होगा, इसमें एक प्रश्न आता है कि बाय लैंड अगर किया है तो 100% 38 लोग हमने मार दिए, हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, हमारे आर्मी का नुकसान नहीं हुआ तो अच्छा, मैं खुश हूं, आई विल बी हैप्पी, मोर हैप्पी। एक भी हमारा जवान को हमको कैजुअलिटी नहीं देनी पड़ी, शहीद नहीं हुआ। तो एक सबसे पहले बाय लैंड हुआ क्या, आर्मी को एक क्लियर करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए। बाय एयर, अच्छा आजकल जो साइंटिफिक सिस्टम है इसमें हर बॉर्डर चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, रडार लगे हुए हैं, इंफॉर्मेशन होती है। क्या रात को आपका हेलीकॉप्टर गया, जेट जाता है, जो भी आता है, ऊपर से पैराट्रूप डालते हैं, जो भी करते हैं, फर्ज कीजिए आपने हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक करके किया तो रात के अंधेरे में आपको 7 जगह ही मिली। क्या एग्जैक्टली हमारा हेलीकॉप्टर का जो शूट करने का, स्ट्राइक करने का लोकेशन जो था रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, वो 7 ही कैंप मिले, 7 थे या ज्यादा थे? आपने कैसे गिने? हाउ यू काउंटेड के देयर वर 7 कैंप्स? और दिन को होती है एक्टिविटी कैंप्स में, रात को नहीं होती है। रात को तो ये RCC बंकर नहीं है वहां। उस एरिया में पाकिस्तान आर्मी के प्लेन रखने के लिए या आर्मी को छिप जाने के लिए RCC बंकर नहीं है। और टेररिस्ट के लिए तो बंकरों का सवाल ही पैदा नहीं होता। दे आर नॉट मेन फॉर बंकर्स। जहां भी रात मिली वहां सो गए। ट्रेनिंग कैंप दिन को होता है और लोकेशन हो सकता है हमारी आर्मी वहां जाकर लोकेशन ले आई हो, लेकिन रात को स्ट्राइक किया आपने, वो जो लोकेशन है वो लोकेशन आपको 7 ही मिले के ज्यादा थे। 38 का कैजुअलिटीज बताया गया कि 38 टेररिस्ट हमने ढेर कर दिए। तो हु काउंटेड इट? आपने किसने गिना कि 38 थे, 40 नहीं थे या 35 नहीं थे? वो किसने कहा? हमारा सोल्जर नीचे उतरा था क्या? क्या ड्रोन से वीडियोग्राफी की? तो प्रूव इट, देश के सामने रखो आपका ड्रोन, बताओ दुनिया को कि ये हमारा ड्रोन की फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है। ये जो चीजें हैं इसमें मैं समझता हूं कि ये फेस सेविंग बीजेपी का इसमें न हो, देश को गुमराह करने का नहीं है। आर्मी के ऊपर नाज है हमको, आर्मी के ऊपर गलत प्रेशर नहीं लाना चाहिए, सही है वही होना चाहिए। और ये सब होता है तो वहां और कोई सिविलियन थे ही नहीं, दूसरे लोग वहां कोई रहने वाले लोग थे ही नहीं क्या? तो ये इतनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन, 7 अड्डे मार गिराए और 38 लोग मारे गए, बधाई आर्मी को। लेकिन इसके प्रूफ, पुरावा, इसके सबके प्रूफ दीजिए, देश को गलत गुमराह मत करिए। आपके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर है होगा नेचुरली, क्योंकि आपके भाषण गलत थे कल फ्लाइट कंपार्टमेंट वाले, और पाकिस्तान के लोग कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमको पाकिस्तान की बात नहीं माननी है। नेचुरली वो अपना ऊपर सीधा रखने के लिए तंगड़ी ऊंची रखवानी हो भी करा करे तो, परंतु ये जो होता है कि पाकिस्तान आर्मी के उसमें कहीं पर भी कोई किसी ने फेस नहीं किया। एक भी आपका हेलीकॉप्टर को, जस्ट ड्रोन इज कंसर्न, अगर टेररिस्ट के हाथ में
एक तो आप मानेंगे कि टेररिस्ट होगा तो राइफल या एलएमजी उसके साथ होगी। मेरा पॉइंट समझिए, अगर मैं टेररिस्ट हूं तो मेरे पास मेरे साथ सोने वाली कोई व्यक्ति होगी तो वो राइफल होगी, एलएमजी होगी, मशीन गन होगी। तो क्या कोई टेररिस्ट, सब टेररिस्ट एक साथ मारे गए? कोई जागता नहीं था। एक भी जागने वाला टेररिस्ट ड्रोन को क्या जब फट कर सकता है? ड्रोन जो है वो 2 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाली चीज नहीं है। ऊपर उड़ेगा तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं होगी। अप टू सम हाइट, 1 फरलॉन्ग समझ लीजिए। तो 1 फरलॉन्ग में अगर फायरिंग करना है तो ड्रोन टूट सकता है। क्यों ड्रोन नहीं टूटा? क्या वहां फायरिंग नहीं हुआ हमारे ऊपर, हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर? क्या हमने वहां पैराशूट डाले थे हमारे जवान? उन्होंने जाकर किया? किसने किया, कैसे किया? शो द वीडियोग्राफी। ये जब चीजें हैं वो डाउट्स डेवलप करती और राष्ट्र की सलामती के लिए किसी के मन में, इंक्लूडिंग मी, अगर डाउट्स डेवलप होते हैं तो अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट शुड ब्लैक एंड व्हाइट, सही स्थिति देश को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। और आई डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी कि सबके प्रूफ रखिए, आप देश की जनता को भरोसा दीजिए कि आपने सही किया है, वी सपोर्ट यू। और फॉरगेट पार्टी पॉलिटिक्स, वी टोटली सपोर्ट द आर्मी एक्शन। लेकिन आर्मी एक्शन का मतलब हमको मालूम होना चाहिए कि अच्छा किया है, सही किया है आपने। वो जम्मू में 20 लोग मारे गए तब क्यों नहीं किया? हमारे पठानकोट एयरपोर्ट पे तक क्यों नहीं किया? किसने ना कहा था? और अब किसने कहा? जिसने कहा उसको बधाई। तो ये जो है ओवरनाइट इंफॉर्मेशन लाए आप, इतने यहाँ 7 कैंप है, वो काउंटेड 7, 10 क्यों नहीं है? ये सब चीजें हैं, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। इसमें आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई पूछना हो, व्हाट आई नो आई विल लेट यू नो। जी, भाजपा ने जो खुलासा किया है सर्जिकल वॉर के बारे में, देश के सामने जो रखा है, उसपे कांग्रेस को भरोसा नहीं है। फॉरगेट कांग्रेस, मैं जो कहता हूँ उसका डिमांड कर रहे हैं सरकार। मैं डिमांड करता हूँ कि प्रूव रखिए पुरावा। व्हाट यू मीन बाय सर्जिकल स्ट्राइक, ये समझिए पहले। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब, ये जो रूम है मेरा, इस रूम में इस कोने में कुछ पड़ा है, पूरा रूम इंटैक्ट रहेगा। इस कोने में मैं आदमी को उठाऊंगा, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और सर्जिकल स्ट्राइक इतने बड़े एरिया में, मे बी 200-400 किलोमीटर और द बॉर्डर में भी, इसमें आपने किया, आई वेलकम इट। लेकिन मेरे को डाउट है, पाकिस्तान वाले ना बोलते हैं, बीबीसी वाले ना बोलते हैं, दूसरा कई लोग, एक्सपर्ट लोग, आर्मी के लोग पुरावा मांगते हैं। मैं भी पुरावा मांगता हूँ, प्रूव इट। जिस तरह से अमेरिका ने ओबामा का वक्त किया था, उसी तरह से बीजेपी सरकार को भी प्रूफ रखना चाहिए। ऑफकोर्स, वो भी इनकी वीडियोग्राफी थी, दिखाई थी कैसे भी। हाँ शो इट, यस, हाँ बिल्कुल। इनको ड्रोन में वीडियोग्राफी किया है तो रखना चाहिए। इन्होंने कहा है कि वीडियोग्राफी किया है तो रखो, विल बी हैप्पी। हाँ नहीं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है ये, डोमेस्टिक प्रेशर, देश की पब्लिक का प्रेशर जो बढ़ा, इस प्रेशर के हिसाब से फेस सेविंग है। अगर सही है फिर भी फेस सेविंग है, अगर सही भी है तो फेस सेविंग है। इससे देश को संतोष नहीं होता है। आप तो ऐसे करते करते क्या समझता है पाकिस्तान, ये समझता है पाकिस्तान से नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई मर गया है तो कोई ना थोड़ा कहेगा, ये तो ऑन रिकॉर्ड होगा। हाउ पाकिस्तान और कोई भी कैसे ना कहेगा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और क्रॉस बॉर्डर जो सीज फायर होता है, इज अ रूटीन। 2 लोग हमारे मर गए, इनके 2 लोग मर गए, स्नैप शूटिंग हो जाता है, कोई कहने वाला हिला तो फायरिंग होता है, मर जाता है, चाहे सिटीजन और प्राइवेट नागरिक भी मर जाता है। बॉर्डर पर रूटीन है, ये पंजाब बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, रूटीन है। इसको मैं नहीं कह, स्पेशल तो स्ट्राइक किया हुआ है हमारा। प्लीज, ये जो बिल्डिंग की थी, सिंह ने कमान अभी में लेफ्टिनेंट जनरल बिल्डिंग की है,
एंड उनका ये भी कहना है कि कुछ टेररिस्ट वहाँ से लाइव जिंदा लेके आए हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर आप डाउट करते हैं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की अगेंस्ट को ब्रीफिंग कर रहा है या उनके क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि इन कमांड आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। मैंने आते आते लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह जी का प्रेस निवेदन पढ़ा हुआ सुन रहा था। ही वॉज रीडिंग इट, और रीडिंग में इन्होंने ये जो मैंने कहा वो सब कहा है। अब वो कहा है इन्होंने, हमने सुना, देश पूरा टाइट हो गया, वाह, हम भी वी आर एप्रिशिएटिंग आर्मी एक्शन। लेकिन इसके बाद एज अ सिटीजन, और जो मैं व्हाट आई नो डिफेंस, जो मैं खुद उस बॉर्डर को मैं आई स्टेट फॉर अ मंथ एंड हाफ, पूरा मैंने देखा हुआ एरिया है। उस एरिया में ऐसे क्राउडिंग करते करते वेरी डिफिकल्ट, एयर स्ट्राइक वेरी गुड। अभी एयर स्ट्राइक होता है तो क्या कोई नीचे से फायर करने वाला नहीं होता है क्या? हम श्रीनगर में जब गए लाल चौक में झंडा लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे, तो उस समय श्रीनगर से जब टेक ऑफ कर रहे थे तो पायलट जो था उसने कहा कि मैंने गलत दिशा से टेक ऑफ किया, क्योंकि कुछ टेररिस्ट लोग उसमें नीचे थे जो फायरिंग करने वाले थे, और जिन्होंने फायरिंग किया भी। अगर श्रीनगर में टेररिस्ट लोग दिन दहाड़े ये जो प्लेन था इसके ऊपर फायरिंग करते हैं तो हमारा ड्रोन या हमारा हेलीकॉप्टर या हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई तो आई बी मोस्ट हैप्पी। लेकिन ड्रोन तोड़ना है तो इजी बात है, तो सब टेररिस्ट एट अ टाइम मर गए। कोई राइफल वाला, कोई एलएमजी वाला नहीं था, ये डाउट्स है सब। आई एम नॉट फेवरिंग इट, लेकिन ये जो क्वेश्चन मेरे मन में होता है वो अगेन व्हाट आई नो द मेंटालिटी ऑफ बीजेपी, इस हिसाब से मैं कहता हूं। और कोई नहीं कह सकता, रूटीन कांग्रेस का वर्कर ये शायद नहीं कहेगा, ही वोंट डेयर इट इसके बारे में, लेकिन आई नो देम कि देश को गुमराह करने में इनको कोई शर्म नहीं आती। ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસે પાકિસ્તાન સાથે 2 વખત કર્યું। 65માં લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી લાહોર બોર્ડર સુધી પહોંચી ગયા। 71માં ઇન્દિરાબેને બાંગ્લાદેશ અલગ કરી દીધું। આ ઇતિહાસ જે છે એને કોઈ બદલી નહીં શકે। જે વગર આવું કર્યું, છમકલા ન કરાય, આમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાય। આ છમકલા કરીને જુઓ અમે આ કર્યું, એનાથી પેલા 20 જવાનો ક્યાં પાછા નથી આવવાના। बाबू जो आप कह रहे हैं वही पाकिस्तान में कर रहा है, कल तो मोदी साहब कह देंगे आप पाकिस्तान की तरफ बोल रहे हैं। क्या जो आप कह रहे हैं ये बात पाकिस्तान कुछ भी कहे, फॉरगेट पाकिस्तान। व्हाट आई नो बीजेपी अगेन आई से कि कोई कांग्रेस का रूटीन वर्कर होगा ना तो नहीं कहेगा कि नहीं, मैं आई नो देम, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनको मैं जो जानता हूं, जो प्रेशर था देश में, लड़ाई का प्रेशर था, युद्ध का था, युद्ध करिए। पाकिस्तान के एक के सामने 10 यादें की, हमारे 20 तो 200 सर ले आइए, 38 ही लाए हैं, बाकी 160 का क्या हुआ? ये प्रेशर था इनके ऊपर, और प्रेशर के ऊपर से जो किया है ना, सही किया है, आई वेलकम इट। लेकिन अब मैं इनको जानता हूं कि इसमें कितनी गड़बड़ी क्या हो सकती है। और ये जो प्रश्न मैंने है, मैं जो डिफेंस में थोड़ी जानकारी इस हिसाब से मैं कहता हूं, और जो मैं इनको जानता हूं कि ये हो सकता है, क्यों नहीं हुआ, इसलिए मैं क्वेश्चन रेज करता हूं। मैं कोई पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हूं, और मैं कोई है, अगर ये फैक्चुअली सही है, हाँ, अभी क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं, मान रहे हैं कि शायद डाउट कर रहे हैं, आप जॉब की जानकारी है उसकी वजह से, पर अगर ये सही निकला तो क्या आप मोदी को बता देंगे? तो उसके बाद अगर ये लगे, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन करें बीजेपी की मेंटलिटी, ये पूरा मामला देखिए। आप लोग प्रधानमंत्री जी को कब से जानते हैं, आई डू नॉट नो। अगर इनके एक भी भाषण का ये जवाब नहीं है, और प्रेशर कितना था देश का वो आप सबको पता है। इस प्रेशर का ये सब प्रेशर का ये एक्शन है, ये एक्शन रिएक्शन से नहीं है, डोमेस्टिक प्रेशर से एक्शन है। पाकिस्तान में हमारे जो लोग 20 लोग जल गए बेचारे, उसका बहुत प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि पठानकोट के बाद बिल्कुल ये हुआ। इसके बाद एक और भी समाचार आए थे थोड़े दिन पहले कि 10 लोग हमने मार डाले वहां से, बाद में आए कि नहीं मारे।
बाद में आया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये ना आए कल बाद में कि ना ये तो ये था, इसका मतलब ये था। और प्रधानमंत्री जी एक ट्विटर प्रधानमंत्री है, क्यों ट्वीट नहीं किया है कि हमारी आर्मी ने इतने लोगों को मारे, मैं ट्वीट करता हूं, क्यों ट्वीट नहीं किया? प्रधानमंत्री जी को कहिए ट्वीट करें। अगर आप है तो आप तो ट्वीट के शौकीन है, क्यों ट्विटर पर नहीं लिखा? ये सब डाउट का मतलब ये है। और थैंक यू, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यस, थैंक यू।